Hello student, today we are going to learn how to issue shares. Right? I hope you will learn the meaning of company and the features of company and the types of share capital. Right? Let me remind, what is company? Company is an artificial person created by law, having separate entity with perpetual succession and common seal. This is the definition, right? So company is an artificial person. They don't have any money. उनके पास कुछ पैसा नहीं होता है. Even though is an artificial person, they don't have their money by their own. अपना पैसा कुछ नहीं होता है. So they have to depend upon the outsiders. What are the outsiders? They have to depend upon the public. So through issue of shares or through issue of debentures, they can get money to run the business. Okay. So now we are going to learn now what is share. What is share? Any idea? You already learned. Share is a small unit, a part of share capital. Normally, the total capital of the firm, a business, is divided into small units. Such denomination is called share. Right? What is share? In simple word, what is share? The portion of capital is called share. What is that? A portion of capital is called share. Capital का हिस्सा को बोलते हैं हम लोग share. Right? Now, what are the types of shares available? There are mainly two types of shares. One is, we already learned in the class 11th. What is that? First one is preference shares. What is that? Preference shares. And another one is, come on, what is that? Equity shares. There are two types of shares. What is that? One is preference shares, another one is equity shares. Right. Why the name called preference? It means they might enjoy some preferences over equity shares. The preference shareholders might enjoy some preferences over the equity shares. So what preferences they may enjoy? So they have two rights. Rights to get dividend. Rights, that is preference, to get dividend before equity shareholder. Before equity share, उनको पहले मिल जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने का पहले डिविडेंड किनको मिल जाएगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाएगा. सेकेंड, रिटर्न ऑफ कैपिटल. सो रिटर्न ऑफ कैपिटल will be get by preference shareholder before the equity shareholder. मतलब दो preferences हैं उनको. What is dividend? Dividend is the share of profit. Profit में हिस्सा. जो dividend जो है equity shareholder को मिलने का पहले ही किनको मिल जाएगा? Preference shareholder को मिल जाएगा. और क्या preferences है? In case of winding up, in case of closing of the firm, a business, तब पहले पैसा किसको वापस मिलेगा? पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर देन बचने से इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा. राइट. सो दे एंजॉय टू प्रीफरेंसेस. फर्स्ट प्रीफरेंसेस आर राइट टू रिसीव डिविडेंड. Right to receive dividend before equity shareholder and right to retain the capital before equity shareholder in case of winding up of the company. ठीक है, समझ गए? सो मैं एग्जांपल बताऊंगा. नॉर्मली मैं क्लास में बताता है कि इक्विटी शेयर होल्डर प्रीफरेंस शेयर होल्डर का अंतर क्या है. प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स आर, जैसा कि हम लोग घर में मेहमान जैसा है. जो घर का अपना जो बच्चे हैं वो दे आर इक्विटी शेयर होल्डर्स. जो मेहमान आते हैं दे आर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स. जो अपने घर के बच्चे हैं उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर. एग्जाम्पल के लिए, क्यों? मेहमान को हम लोग कुछ सीमित अमाउंट ही देते हैं. मान लीजिए मेहमान आ रहा है घर में, क्या देंगे? चाय देंगे, समोसा दे देंगे. कितना देंगे? 10 देंगे क्या? 1 या 2 देते हैं. Isn't it? मान लीजिए आपका फादर एक 10 समोसे लेके आए.
समोसा ये मीन्स डिविडेंड, राइट। समोसे लेके आए, मेहमान आए, 2 मेहमान आए हैं घर में, कितना समोसे देंगे? ए को 2 समोसे दे दिए और बी को 2 समोसे दे दिए, राइट। फिर 2 समोसे खा के इन लोग चले जाएंगे। कितना समोसा बचा हुआ है? अभी 6 समोसा बचा हुआ है। वो किसको मिलेगा? फुल इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल में, मान लीजिए पापा 4 समोसे लेके आए, घर में मेहमान आ गए, 2 समोसे दे दिए ए को, 2 समोसे दे दिए बी को, और कितने समोसे बचे हैं? नथिंग, कुछ नहीं है। सो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिल जाएगा, बचने से ही किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। समझ गए? सो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय सम प्रीफरेंसेस ओवर गेटिंग डिविडेंड एंड गेटिंग कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। समझ गए? अभी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स में बहुत सारा टाइप्स है, वो हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स shares. Let's see. The first preference share type is cumulative preference. Cumulative preference share. Cumulative preference shares. You are the shareholder. आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, आपको क्या मिलेगा? ईयर एंड में प्रॉफिट होने से डिविडेंड मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट अर्न करता तो यू विल गेट डिविडेंड, अदरवाइज डिविडेंड नहीं मिलेगा। नॉर्मल क्या है? आप डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू विल गेट इंटरेस्ट। व्हेन वी इन्वेस्ट इन शेयर्स यू विल गेट प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। अभी एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीनिंग क्या है? ईयर सपोज इन पर्टिकुलर ईयर 2019 में डिविडेंड जो है नहीं मिला, डिविडेंड जो है इनको नहीं मिला। किसको नहीं मिला? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डिविडेंड नहीं मिला, उनको मिलना था कुछ अमाउंट, नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर 2020 में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोनों मिलेगा। किसका अमाउंट? 2019 का डिविडेंड भी मिलेगा प्लस 2020 का डिविडेंड भी मिलेगा। मतलब जो एरियर्स था लास्ट ईयर का, जो बचा हुआ था, ड्यू था, वो अमाउंट ऐड होके करंट ईयर में उनको डिविडेंड मिलेगा। दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, मतलब दे कैन गेट द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एबल टू गेट द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। जो एरियर्स था, जो बचा हुआ डिविडेंड था लास्ट ईयर, वो एरियर्स भी नेक्स्ट ईयर में मिल सकता है, right? That is called cumulative preference shares. Simple, they can get the arrears of dividend in the next year. Suppose they didn't get the dividend in the current year, they will get in the next year, right? समझ गए? सेकेंड क्या होगा? क्यूमुलेटिव हो गया, फिर क्या होगा? नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसका अपोजिट है। क्यूमुलेटिव का अपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव। इनमें क्या होगा? इनको सपोज पर्टिकुलर ईयर में इनको डिविडेंड नहीं मिला, वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, राइट? इनको मिल गया था 2019 में डिविडेंड नहीं मिला, 20 में मिल गया था इन लोगों को, लेकिन एक केस में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में उनको ये 19 का डिविडेंड नहीं मिलेगा, सो ओनली 20 का डिविडेंड ही मिलेगा। दे आर द टाइप्स। इफ यू विश, आप पहले अप्लाई करने पहले आपको डिसाइड करना है कि क्यूमुलेटिव में जाना है कि नॉन क्यूमुलेटिव में जाना है, राइट? नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज दैट? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। Participating, third one is participating preference shares. Participating, what is participating? Because preference shareholders are right to get a fixed percentage, 12, 18, 13% interest, whatever it is mentioned in the article of association. Mention क्या होता है? इतना fixed percentage उनको डिविडेंड मिलते रहेगा, राइट? लेकिन ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फायदा क्या है? क्या प्रेफरेंसेस है? उनको ये परसेंटेज जो फिक्स किया वाला परसेंटेज मिल जाएगा, उसका अलावा एडिशनल सरप्लस प्रॉफिट कंपनी अर्न किया तो उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा।
So they can participate in the surplus of profit. They can participate in the surplus of profit. उनका 12% या 18% जो कुछ भी है फिक्स जो किया हुआ है वो मिलेगा, साथ साथ उनको एडिशनल प्रॉफिट भी मिल सकता है व्हेन अ कंपनी अर्न्स सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. राइट, समझ गए? सिंपल क्या है, दे विल गेट द फिक्स्ड अमाउंट, अपार्ट फ्रॉम दैट दे मे गेट additional amount of profit in case of surplus of profit of a firm. Right? Next is non-participating. सिंपल, आप खुद बोल सकते हैं, बताइए. पार्टिसिपेटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सरप्लस प्रॉफिट में, नॉन पार्टिसिपेट में उन लोगों को सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनको ओनली फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा, फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलेगा उनको. मान लीजिए 12% फिक्स किया गया है, उतना ही मिलेगा. इसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. दे विल गेट ओनली दी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट. राइट, नेक्स्ट वन इज पांचवा, दिस इज फिफ्थ वन, रेडीमेबल. व्हाट इज दैट? रेडीमेबल, REDEMABLE, redeemable preference shares. Redeemable is a new word, no? Redeemable. Redeemable is nothing but repayable. Normally कैपिटल को हम वापस नहीं करते हैं. एक बार कंपनी पैसा कैपिटल ग्रुप में रिसीव कर दिया, वापस नहीं करेगा एक्सेप्ट एट वाइंडिंग अप. सो नॉर्मली पैसा वापस नहीं होता. लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट किए, किस में इन्वेस्ट किए? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किए, तब आपका पैसा वापस मिल सकता है आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम. सो redeemable preference share means it will be repaid by the company after stipulated time. मान लीजिए मिस्टर ए वो इन्वेस्ट किया, किस में इन्वेस्ट किए हैं? वो रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किए. सो वो जो कंडीशन डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट मेंशन क्या होगा? आफ्टर 15 years द अमाउंट विल बी रीपेड टू द इन्वेस्टर. कंपनी 15 years यूज करेगा पैसा को, आफ्टर 15th year you will get the amount whichever is invested by you previous before 15 years. That is called redeemable. जो प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग redeemable preference shares. राइट, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? irredeemable. What is that? Irredeemable preference share. What's irredeemable? जस्ट अपोजिट, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा. आप वापस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? उसकी नेक्स्ट कहानी है. मान लीजिए मिस्टर बी इन्वेस्ट किया, किसमें? इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर दिए. सो कंपनी पैसा वापस नहीं करेगा. अब इन्वेस्ट कर दिए, आपको डिविडेंड मिलते रहेगा हर साल आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलते रहेगा, लेकिन पैसा जो आप इन्वेस्ट किए वो नहीं मिलेगा. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर मैं तो इन्वेस्ट किया पैसा वापस कैसे, मेरा पैसा चाहिए, कैसा मैं लूँ? उसके लेने के लिए आपको अलग वे है, सेकेंडरी मार्केट जाना पड़ेगा, अपना शेयर्स को बिक्री करना पड़ेगा दूसरा किसी के पास, ट्रांसफरेबल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर आप बिक्री कर सकते हैं. लेकिन कंपनी वापस नहीं करेगा. आपको पैसा चाहिए, यू कैन सेल योर शेयर्स टू समबडी थ्रू ऑनलाइन या थ्रू डीमैट अकाउंट. राइट, दैट इज इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. जो प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी वापस नहीं करेगा एक्सेप्ट वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप में ही आपको पैसा वापस मिल सकता है, नॉर्मली वापस नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन साल एवरी ईयर एंड में आपको डिविडेंड मिलते रहेगा विथ फिक्स्ड अमाउंट. नेक्स्ट क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. द सेवेंथ वन which is the seventh one is convertible preference shares. Convertible preference shares. Convertible means आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, कुछ साल का बाद एक ऑप्शन दिया गया है आपको कि यू कैन कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. यू कैन कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज गिवन इन द इट्स ऑप्शंस गिवन in the article of association that this type of shareholders, if they wish, they can convert their preference shares into
equity shares. They are getting the rights to convert their preference shares into equity shares. So this is called convertible preference shares. Okay. The last one is non-convertible. Non-convertible preference shares. ये तो खुद आप ही बोल सकते हैं ना, जो प्रीफरेंस शेयर्स को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. There is no option available to convert the preference shares into equity shares. So these are the types of classification of preference shares. जो हम लोग पढ़े वो दोबारा हम लोग इसको रिवाइंड करेंगे. फर्स्ट क्या पढ़े? क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर होल्डर दे कैन गेट द अर्लियर्स ऑफ डिविडेंड. जो अर्लियर्स बचा था वो अर्लियर्स ए साल करंट में मिल जाएगा. नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स में द शेयर होल्डर्स मे नॉट गेट द अर्लियर्स, राइट. पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है? द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स दे हैव द राइट टू गेट द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट. दे विल गेट द minimum amount, that is fixed amount. Apart from that, they will get the extra amount in case of surplus of profit, right? Non-participating में क्या होता है? They will get only the fixed rate, the specified in the document. After that, redeemable preference share मतलब क्या होता है? जो preference shares को हम लोग कुछ टाइम के बाद रीपे करेंगे. कंपनी जो रीपे करे उसको बोलते हैं redeemable preference shares, which will be repaid by the company after stipulated time, right? Irredeemable preference share का मतलब क्या होता है? The preference shares will not be redeemed in the near future. It will be redeemed only at the time of winding up, right? What is convertible preference shares? Here the shareholders are getting rights, preferences to convert their preference shares into equity shares. इनको ऑप्शन दिया होता है कुछ साल के बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. फिर लास्ट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. द प्रेफरेंस शेयर शैल नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स. सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट. लेट्स लर्न हाउ. अभी आप लिस्ट क्या पढ़ने वाले हैं. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही है. इसलिए आपको इतना एक्चुअली थियरी पार्ट में प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का पढ़ लीजिए, लेकिन अकाउंटिंग पार्ट में दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, राइट. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स क्या क्या रूप में इश्यू होता है. द वेज ऑफ इश्यूइंग शेयर्स. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर बोथ आर सेम व्हाइल इश्यूइंग. अब इश्यू करते वक्त द ट्रीटमेंट जो है दोनों का सेम ही है, राइट. नॉर्मली शेयर क्यों इश्यू करते हैं बताइए? शेयर इश्यू क्यों करते हैं? कंपनी के पास खुद का पैसा नहीं है, सो दे हैव टू आस्क मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स. कंपनी के पास पैसा नहीं है, किससे पूछेंगे? पब्लिक से पूछेंगे. आओ भाई आइए और मेरा कंपनी में इन्वेस्ट करिए और कैपिटल को बढ़ाइए, आप भी ओनर बन जाइए, राइट. सो नॉर्मली शेयर इश्यू क्यों करते हैं? कैश के लिए करते हैं, पैसा के लिए करते हैं, राइट. पैसा के लिए दो फॉर्म में करेंगे. कभी हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट कर देते हैं. व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट मैं बताऊंगा अभी. देन पब्लिक इशू करते हैं, पब्लिक इशू. और थर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. लेट्स लर्न. मैं कंपनी है, वी आर ए कंपनी, सो वी नीड मनी, सो वी आर प्लान टू इशू शेयर्स. हमें पैसा चाहिए, सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि शेयर इशू करना है. तो दो ऑप्शन हम लोग पास. कैश चाहिए हम लोग को. एक तो ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट और एक ऑप्शन है पब्लिक इशू, पब्लिक सब्सक्रिप्शन. सो कहाँ पर जाएंगे? मान लीजिए पहले प्राइवेट प्लेसमेंट में जा रहे हैं, तो उसकी मीनिंग क्या है? यहाँ पर हम लोग पब्लिक के पास नहीं जाएंगे. कंपनी जो है अपना जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, उनके रिलेटिव्स, उनका फ्रेंड्स, NRI, LIC और ICICI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, नेट वर्थ इंडिविजुअल और फ्रेंड्स, LIC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ए पर्टिकुलर प्राइवेट पार्टीज को
फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स दे देना। शेयर इशू नहीं करेंगे पब्लिक को, सीधा आइडेंटिफाइड पर्सन्स को या आइडेंटिफाइड एजेंसी को एक साथ उस शेयर्स को इशू कर देना, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट्स द प्राइवेट प्लेसमेंट? शेयर्स इश्यूड टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एनआरआई, यूटीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, आईसीआईसीआई, सो लाइक दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को एक साथ शेयर इश्यू कर देना, उसको बोलते हैं शेयर्स इश्यू एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू करने की जरूरत नहीं है, फॉर सम रियल फॉर्मेट्स आर देयर। सो व्हाट इज सिंपल मीनिंग क्या है? शेयर्स इश्यू टू प्राइवेट पार्टीज, नॉट टू पब्लिक, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या है? पब्लिक से पैसा पूछना, पब्लिक से पैसा पूछना। सो बोलते हैं द फॉलोइंग, मतलब टू गेट मनी फ्रॉम द पब्लिक, so there are two ways to get money from the public. One is lump sum में ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। पैसा पब्लिक से हम लोग ले रहे हैं, सो कैसा ले सकते हैं? इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं या तो लम्प सम में ले सकते हैं, राइट। सो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब शेयर इशू कर रहे हैं, पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग कंपनी जो है बड़ा एसेट्स वगैरह परचेस कर रहे हैं, मशीनें वगैरह परचेस कर रहे हैं। सो मशीन परचेस कर रहे हैं तो क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं, हम लोग शेयर्स दे रहे हैं। एसेट्स मिला, पैसा नहीं किया, शेयर्स, मतलब कैश का बदले में शेयर इशू कर देना, इसको बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हेन अ कंपनी परचेज सम एसेट्स, in return we are not paying cash, we are issuing shares to the vendor. So three conditions है, first private placement, second public issue और third is for consideration other than cash. अभी हम लोग अकाउंटिंग पार्ट ऑफ व्यू में हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं। कौन सा चीज पढ़ने वाला है? पब्लिक इशू पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, नाउ शेयर्स क्या फॉर्म में इश्यू होता है? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स नॉर्मली कैसा इश्यू करते हैं? व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज? फर्स्ट, एक मैं बोला था लम्प सम में, वन इज लम्प सम में इश्यू होगा और एक इंस्टॉलमेंट में इश्यू होगा एक साथ। मान लीजिए 10 रुपीज है दाम, फेस वैल्यू कितना है? शेयर्स का दाम कितना है? 10 रुपीज को फेस वैल्यू बोलते हैं हम लोग। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपीज को एक साथ ले लेना, किससे? इन्वेस्टर से, उसको बोलते हैं लम्प सम। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है? ये 10 रुपीज को हम लोग तोड़ेंगे, एप्लीकेशन का साथ कुछ अमाउंट लेंगे, अलॉटमेंट के साथ कुछ अमाउंट लेंगे, फर्स्ट कॉल में कुछ अमाउंट लेंगे और फाइनल कॉल में कुछ अमाउंट लेंगे। मान लीजिए एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3 रुपीज ले लिए, यहाँ 3 लिए, यहाँ 2 लिए, ऐड करिए 10 रुपीज। तो कौन सा अच्छा है बताइए? एक साथ पेमेंट करना अच्छा है कि इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करना अच्छा है? आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं सर, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करना अच्छा है क्योंकि किसी का ज़्यादा बॉर्डर नहीं होगा, राइट। नॉर्मली कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में इशू करता है शेयर्स को, राइट। सो व्हाट आर द प्रोसीजर्स वी हैव टू फॉलो, व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल इशूइंग शेयर्स? कंपनी को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है शेयर इशू करने के लिए, राइट। कंपनी को शेयर इशू करना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है बताइए? फर्स्ट वन इज प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस, ये नाम सुने आप? प्रॉस्पेक्टस का वर्ड आप सुने होंगे स्टार्टिंग में। कहाँ सुने प्रॉस्पेक्टस? जब आपका दीदी या भाई जो है कॉलेज एडमिशन लेते होंगे, वहाँ कॉलेज से एक बुक टाइप का मिलेगा, उसको बोलते प्रॉस्पेक्टस। सो बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज, a company has to draft prospectus. A prospectus is the invitation to the public. जैसे कि हम लोग शादी में क्या करते हैं? कार्ड छपाते हैं और इनविटेशन देते हैं, आइए शादी में आइए आइए करके, इसलिए बर्थडे पार्टी में इनविटेशन छपाते हैं और बुलाते हैं गेस्ट को। जस्ट लाइक दैट कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, राइट। सो प्रॉस्पेक्टस इज द इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्रॉस्पेक्टस जो एक डॉक्यूमेंट है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, एक बुक है, जैसे दिस बुक
वेरी अट्रैक्टिव वे में एक ड्राफ्ट किया जाता है और कलरफुल मैनर में. इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. ये जो प्रॉस्पेक्टस में सारा इंफॉर्मेशन रहेगा. राइट, व्हाट इंफॉर्मेशन आर देयर? द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे स्टार्ट हुआ, द नेम ऑफ द डायरेक्टर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, what are the project they are running, last year financial statement, liabilities कितना है, और contingent liability कितना हुआ है, और शेयर का दाम कितना होता है, मतलब फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का, ऑथराइज कैपिटल कितना है, और ऑडिटर कौन होता है, और इशू मतलब कौन सा डेट में शेयर इशू हुआ है, इशू का डेट, इशू डेट, और क्लोजिंग डेट कब है, और बैंकर कौन है, who is the banker. So everything will be there, each and everything. Simply it's just like it contains all the information. It's like an X-ray of a company, right? It contains all the factual informations, right? Prospectus जो है ड्राफ्ट कर सेबी को भेजना है, सेबी अप्रूवल देगा, अप्रूवल मिलने का बाद ही हम लोग उसको इश्यू करेंगे टू द पब्लिक. ठीक है, मान लीजिए प्रॉस्पेक्टस हम लोग बना दिए और पब्लिक डोमेन में दे दिए, बैंक्स में अवेलेबल है, एवरीथिंग एवरीवेयर इज अवेलेबल. सो वो प्रॉस्पेक्टस को इन्वेस्टर्स पढ़ेंगे और इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, प्रॉस्पेक्टस को पढ़ेंगे, सारा डिटेल्स पढ़ेंगे, लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और पढ़ के उनको इंटरेस्ट आ गया, मतलब दे आर इंटरेस्टेड. सो हियर आफ्टर the interested investors are मतलब they are very interested with the company, मतलब कंपनी का इंफॉर्मेशन बहुत पसंद आ गया उनको, उनका जो लास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, सो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द कंपनी. मीन्स दे क्या करेंगे, जो प्रॉस्पेक्टस के लास्ट पेज में एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म को जस्ट फिलअप करेंगे, भरेंगे. और एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा फॉर्म होगा, इसमें पर्टिकुलर रेट लिखा रहेगा, एप्लीकेशन मनी कितना होगा. एप्लीकेशन मनी मान लीजिए 3 रुपीज. आप कितना शेयर अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं, 1000 इंटू 3, आपको 3000 रुपीज बांध कर आपको डीडी बनाकर पर्टिकुलर बैंकर को भेज देना है. ठीक है. सो सेकेंड स्टेप इज आफ्टर गेटिंग द प्रॉस्पेक्टस द कंपनी विल गेट द एप्लीकेशन, द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. सेकेंड इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. पहले क्या किए, पहले हम लोग प्रॉस्पेक्टस प्रिंट कर अप्रूवल लेकर भेज दिए पब्लिक को, पब्लिक प्रॉस्पेक्टस लिए, प्रॉस्पेक्टस को पढ़े, राइट. फिर प्रॉस्पेक्टस पढ़ के इंटरेस्टेड इन्वेस्टर जो है अप्लाई किए. कैसे अप्लाई किए, विद एप्लीकेशन मनी. सो नॉर्मली प्रॉस्पेक्टस इश्यू कर एक 120 दिन का अंदर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना. प्रॉस्पेक्टस कब इशू किए, उसको 120 दिन, 4 मंथ का अंदर अब सारा एप्लीकेशन पैसा सब्सक्राइब हो जाना. सपोज 90% मिनिमम कितना सब्सक्राइब होना, 90% ऑफ द इशूड कैपिटल. मान लीजिए अब 10,000 शेयर इशू किए, उसमें 90% कितना होता, 9,000 शेयर कम से कम सब्सक्राइब होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए पब्लिक से. सपोज नहीं हुआ तो सारा पैसा को आपको 130 दिन का अंदर वापस करना है. दोबारा बोल रहा हूं, प्रॉस्पेक्टस इशू करके 120 दिन का अंदर मिनिमम कितना पैसा रिसीव होना चाहिए, 9,000, 90% ऑफ द इशूड कैपिटल रिसीव होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए. और सपोज हमें उतना पैसा नहीं मिला, सो वी हैव टू रिटर्न विद इन 130 डेज. हम लोग छूट गए, 130 डेज का ज्यादा हो गया, तो आपको कंपनी को 15% इंटरेस्ट का साथ देना पड़ेगा वापस पैसा. ठीक है, इसको डिटेल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. एप्लीकेशन प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिए, एप्लीकेशन का पैसा भी मिल गया. थर्ड जो है, जो अप्लाई किए उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. शेयर्स को क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे. जो अप्लाई किए उनको शेयर्स अलॉट कर दिए. लास्ट में क्या है, बचा जो पैसा है वो कॉल्स में ले लेंगे. सो दिस इज द स्टेप्स.
प्रॉस्पेक्टस, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, लास्ट में जो पैसा आफ्टर अलॉटमेंट कुछ टाइम के बाद 1 month लेटर वी विल मेक अ कॉल में पैसा ले लेंगे, राइट। सो द नेक्स्ट द प्रॉब्लम्स जो है रियल एंट्रीज जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। टिल देन बाय।